8-year experienced full stack developer. Let's talk to Mannu Paji Man, today. Paji, I've kaise? been building since college days. So Where do you think these languages are going, Probably Paji? Because now all the that we junior devs or interns or freshers who are starting out should definitely dive deep into these technologies because AI can कहाँ से start करना चाहिए? शुरुआत क्या होनी चाहिए उनकी? Like where should they pick any pick up? language, pick any language, whether it is Python, C. I recommend C. Showcase your work so that you get into the eyes of the recruiters. I believe in inbound marketing more rather than outbound. माने मतलब रिस्क तो है, जॉब छोड़ना इज अ रिस्क बट इट इज कैलकुलेटेड बिकॉज आपके पास तो पाजी चलो हम थोड़े प्रोजेक्ट्स जिसको हमारे प्यारे व्यूअर्स ने जो डाल के भेजे हमारे लिए. Welcome everybody for another podcast today. It's a very, very special one for me as well because today we are talking to somebody who is 8-year experienced full stack developer, architect of many, many enterprises and businesses, and he himself owns multiple. Especially my favorite, Esternity, the UI library that I use for most of my projects. Let's talk to Mannu Paji today. Paji, कैसे हो? एक नंबर आप कैसे हो? How are you doing? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार. आपने आपकी टाइम लेके इतनी बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए आए आप. सो वेलकम टू टेक पॉडकास्ट पाजी. ऑन दैट नोट, चलो पाजी, आई वांट एवरीबडी टू नो, आई वांट द पब्लिक टू नो, क्योंकि हमें तो पता है. आई नो पर्सनली यू फ्रॉम एस्टर्निटी विच इज़ अ वंडरफुल यूआई लाइब्रेरी. गाइस डू चेक इट आउट. सो आई वुड लाइक टू हियर योर ओन लाइक जर्नी ऑफ इट, कि आपने कैसे सोचा ये स्टार्ट करने का, एंड हाउ वाज यूर लाइक आउट ऑफ द कॉलेज स्ट्रेट फ्रेश कि आपको, एंड योर जर्नी ऑल द वे टू हियर राइट नाउ. हाउ वाज इट लाइक व्हाट वुड बी अ बेसिक आउटलाइन ऑफ दैट? Well, journey was so crazy good. Man, I've been building since college days. So I didn't go to college much. Was building in my college hostel room with my friends, drinking and building stuff that happened. और उसके टाइम से I was into building things, studying from courses through courses and also project based learning था. तो काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा. फॉर एग्जांपल सुबह उठते थे, चिल करते हैं लड़के जो करते हैं. उसके बाद आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट एंड देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू वर्क a lot on building a lot of projects back then, and that habit sort of picked up even after 7-8 years. It's still there. So yeah, And how was the that journey to Esternity? Like, I mean, were you always into front end या कैसे थे आप? मतलब कि कुछ लोग no, होते हैं ना जो, हाँ. I started out as a backend engineer initially. For 2 years I did a lot of backend, then I transitioned to full stack. This way I was working Node primarily, and simultaneously I learned Angular and React. Then I completely transitioned into React, and then I started building a lot of React projects because demand was more at that point in time for React. So React का काफी market था. So I started building a lot of React related projects, and Easternly UI specifically came at a very later stage. Initially it was something else. Initially I was building a lot different products, but then through a lot of iterations, उससे पहले there were 20-30 different products. Also had a job wherein I worked for like 3 years, or उसपे most of the learnings happened. And then with a lot of iterations, a lot of ideas pivoting, HTTP happened, but it started off with a very basic front-end project wherein users could use components and, copy paste into their projects. But then later on, I standardized it with shared scene in place and, other libraries like Tailwind UI when it came out. So it helped shape the HTTP that you see today. Absolutely, yeah. I mean, I personally love it a lot. Well, like at the end when we reached reviewing projects, I have added my own portfolio as well. मुझे मेरी All, portfolio आधी तो Esternity पे ही बनी हुई है पूरी. Literally, like it is that's completely crazy. on that point. और मुझे तो genuinely बहुत ही Tailwind and आप like overall you use Next.js, Tailwind, React and Node Yeah. basically, right? Yeah. And
where do you think these languages are going, Paji, right now? Because now that we have a lot of, I mean, I have seen you posting a video as well जिसपे आप एक AI बना रहे हो जिसके अंदर आप just component Yeah, डालोगे तो you'll get the component. So where do yeah. you think these things are going? Like अगर कोई नया बंदा start कर रहा है, so should he learn them, or do you think there exists demand for these projects, even like these languages even now? Yeah, totally. I believe all the junior devs or interns or freshers who are starting out should definitely dive deep into these technologies, because AI can, only help you along the way, not do it completely. But yeah, junior engineers are at a risk if they are not skilled. For example, 3 years, 4 years from, when you go back in time, 3 or 4 years, it was easier for a fresher to get a 20 lakh, 30 lakh job in a remote startup or whatever. But now it is difficult because there are AIs who can practically replace interns or junior engineers, right? So you have to be extremely skilled at your craft. Straight out of college, people expect you to, start contributing into companies, start, reading code bases from the ground up. So you should be skilled and motivated enough to do it yourself instead of just, grinding lead code or, practicing DSA. One should also have this development mindset that they want to build things and stuff end to end. So stuff like that, I think, will help juniors. But AI definitely is advancing a lot. People can generally make a good use of it if they're skilled enough. Then, it won't replace them anyway. I don't think it will replace them. AI is still dumb. AI still has a lot of potential and a long way to go. But 3-4 years from now, it'll be a lot better. I mean, 3-4 years a lot. In 1 or 2 years from now, it'll be a lot better. So I think, yeah. Yeah, I mean, with So yeah, with the GPT-4 and then every yeah, new version of GPT that comes from OpenAI, it yeah, it creates a tension in me as well कि मतलब यार yeah. I will be honest with you, like मैं अभी मास्टर्स खत्म किया था मई में 2024 में, Yep. एंड मेरा जो जर्नी ऑफ प्रोजेक्ट्स था, आई वाज इनटू रिएक्ट फ्रॉम 2022, जिसमें लाइक इट स्टार्टेड टू गो आउट एंड Okay. पीपल वर टॉकिंग अबाउट ऑल द वेबसाइट डेवलपमेंट एंड थिंग्स, एंड देन आई Yes. गॉट इनटू नेक्स्ट वेरी रिसेंटली, लाइक वो कुछ 2 साल हुए थे, लाइक 1.5 साल हुआ था, जिसमें नेक्स्ट में हमने स्टार्ट किया कि जो पहले क्या था, रिएक्ट एंड एक्सप्रेस यूज करते थे, Yeah. जो बैक एंड का The एक्सप्रेस Mon हो गया, stack, रिएक्ट the फ्रंट एंड हो गया, OZ हाँ Mon बेसिकली stack. काइंड Yeah. ऑफ. अब वो नेक्स्ट जब आई थी, इट इज अ पैकेज ऑफ एवरीथिंग. Yeah. एंड व्हेन वी गॉट इनटू नेक्स्ट, इनिशियली वाज लाइक यार कैसे करती है ये, मतलब एक सब पेजेस के अंदर डाल दिया तो Page राउट level बन गया. routing. Yeah. तो वो सब इट वाज वेरी फैसिनेटिंग. एंड नाउ एक 1.5 साल के बाद आज मैं क्या करता हूँ, मेरा हर प्रोजेक्ट का स्टार्ट ये होता है, मैं चैट जीपीटी पे डालता हूँ मेरी जो पूरी आइडिया होती है, और मैं उसे बोलता हूँ गिव मी ए बेसिक फाइल स्ट्रक्चर और बेसिक का कोड दे दे मुझे ईच फाइल का, मैं वहां से Yeah. स्टार्ट कर लूंगा, और मुझे जो ये कलर्स चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ. सो इट गिव्स मी ऑल द पैकेजेस दैट आई नीड, सब कुछ. एंड वहां से मैं अपनी फिर आइडियाज या फंक्शनैलिटीज डालते रहूंगा, बट बेस आइडिया वही बना देती है. सो समटाइम्स इट इज काइंड एंड बोल्ड डॉट न्यू, आई एम श्योर यू नो इट, जो Yeah. एक एआई का जो पूरा बना हुआ है, जो पूरी पैकेज ही It's जिग really कर good. देती है हमारे लिए. इट्स Yeah. लाइक दीज थिंग्स. सो अकॉर्डिंग टू यू एंड योर ओपिनियन इज दैट कि आज भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का करियर बन सकता है विच इज एट अ Yeah. वेरी गुड लेवल. Definitely. I mean, you'll have to dive head first into the first principles and the fundamentals. Like, for example, if you're a software engineer freshly out of college, right? So we expect you to be well versed with concepts like operating systems or computer networks or computation, compiler design, stuff like that. So you're well versed with the fundamentals of computer science, as well as you'll be able to contribute, if not day one, a week or a month from now, into development practices. That comes when you've been building projects. You take minor and major projects really seriously into your college. That is when you're into the building mindset, and that is when the company doesn't have to train you much to get you down to production level coding, right? So I think, yeah, you said you scaffold your project through ChatGPT, right? Try Yes. Cursor. You don't even have to copy paste. You can just put in a command, it'll generate files for you right into the VS Code editor, right? That is a fork. I've worked with Cursor as a company before. We built their landing pages, stuff like that happen. Oh. But yeah, Cursor is a crazy good piece of software, and you can, for example, if I'm building something right now at H20 or whatever you see, 50% of every component is built with AI.
I just provide the finishing touches of it. For example, if I want to add mouse events or monotonous tasks that I would have हाँ हाँ. delegated anyway to a junior or a intern, right? That AI takes care of it. So how is a junior dev or an intern going to help me or help my company succeed is a question right now. So I think that boils down to the values that you provide or how skilled you are with your coding. And once you're well versed, I think you'll anyway be useful. So there are a lot of jobs in the market right now as well. Even with AI, there are a lot of jobs. Now people are coming up with demands like we need engineers who are well versed on how to use products like Cursor or ChatGPT or how Yes. to use them to their advantage, right? So everyone can use it. It's all abundance mindset. एंड रिसेंटली दिस हैपेंड विद मी एज वेल भाजी. सही कह रहे हो कि मेरी कुछ कंपनी में जब मैंने अप्लाई किया था द क्वेश्चन दे आस्क्ड अस कि हाउ व्हाट आर द एआई टूल्स दैट यू यूज टू कोड, कि Yeah, कोपाइलट, कर्सर, चैट जीपीटी, तुम क्या क्या yeah. यूज करते हो. सो दे Mhm. वांट टू नो कि हाउ गुड आर यू विद यूजिंग देम टू फास्ट इन द Yeah, प्रोसेस रादर देन कि उसको रिप्लेस करने से ज्यादा. एंड yeah. Everyone wants to ship fast, right? Everyone wants to build things fast or fail fast for that matter, so that they can iterate. So nobody's going to wait for a week to change buttons, at least in startups. So yeah, they are absolutely. going to themselves provide tools like Cursor or ChatGPT, O1 Pro. If I'm not sure if you, I'm sorry, I'm not sure if you've used it, but O1 Yeah. Pro is crazy good. मतलब वो नेक्स्ट लेवल है. वो उससे मेरे को डर लग रहा है जो वो मैं वन प्रो वही है मैं चैट जीपीटी प्लस ही चलाता $200 हूँ वाला. क्योंकि मेरा काफी सारा हाँ, तो काम प्लस वन था इंक्लूडिंग. $200 पर मंथ वाला. दैट अरे वो नहीं चला था भाई. दैट वो नहीं दैट चला दैट था. इज लाइक दैट इज amazing. It takes a lot of time to throw in the एनालाइज एंड output, एवरीथिंग. but ओके. it is. I mean, you prompt it with very basic prompts, it will give you exactly what you need. Exactly. I haven't experienced it yet with any other model out there. It's good, दैट इज but yeah, क्रेजी. again, $200 a month. Not everyone can afford it ऑफ and कोर्स. या. practice with it. So yeah, pros Fair, and that is cons. fair. And as we are moving towards a few of the common questions that every student will absolutely have in their, whether it is USA, whether it is any country across the world, मेरे को अभी कभी मतलब शायद आपके पढ़ने के तरीके अलग हो सकते हैं, पर जो जिसको पढ़ना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, उसका तरीका एक ही है. देयर आर नॉट मेनी वेज. यू हैव टू बिल्ड, ब्रेक एंड Yeah, लर्न. वेरी सिंपल. yeah, सो absolutely. बिफोर वी रीच दैट पॉइंट, मैं दो चीजें आपसे जानना चाहता हूँ. द फर्स्ट थिंग दैट इज कि ये बाहर ना $1 million क्वेश्चन है ये एक स्टूडेंट के लिए, कि डीएसए पढ़ना चाहिए या ये जो वेब डेवलपमेंट इन सब के प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते रहना चाहिए, या मतलब बेसिकली कॉम्पिटिटिव कोडर बनना चाहिए या प्रोजेक्ट बेस्ड कोडर बनना चाहिए. व्हाट विच गिव्स यू मोर वैल्यू? क्योंकि काफ़ी बार ये होता है, मैंने भी मेरे फ्रेंड्स से मिला हूँ, या आई यूज्ड टू हैव दिस क्वेश्चन एज़ वेल, एंड आई इवन नाउ सी पीपल आस्किंग मी आफ्टर ग्रेजुएटिंग कि भाई आप क्या करते थे? हमें समझ Hmm. नहीं आ रहा है, क्या बनना है? तो आप बताओ पाजी. A very goal-oriented mindset. For example, every FANG or FANG company asks for DSA, right? तो अगर आपको गोल FANG में जाना है, तो you'll anyway have to study DSA, right? और आपका गोल स्टार्टअप्स में जाना है, तो आपको DSA की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट सिंपली शोकेस दैट यू कैन कंट्रीब्यूट फ्रॉम डे वन. मतलब स्टार्टअप के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको 2-3 महीने ट्रेन करे जैसे गूगल करती है. तो स्टार्टअप को अगर इतना टाइम नहीं है तो दे आस्क फॉर डेवलपमेंटल स्किल्स, दे वोंट आस्क DSA, राइट? FANG, on the other hand, will train you for 4-5 months and they'll make you ready for the production level code that you're going to write. उसके लिए अंडरस्टैंड फ्रॉम अ कंपनीज पर्सपेक्टिव, एक कैंडिडेट को आपको जज करना है कि वो अच्छा कोडर है कि नहीं. आप उसके सारे प्रोजेक्ट्स नहीं देख सकते. आप उसको 3 दिन का टेक होम असाइनमेंट नहीं दे सकते. आपको 1 घंटे में जज करना है. तो बेस्ट फिल्टरिंग क्राइटेरिया इज DSA. इसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप. डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स कर देता है, क्यों? क्योंकि ये कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है. दूसरा, इट टेक्स केयर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो वो दो ही चीज़ देखते हैं कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है, फैन कंपनीज. वो देखते हैं कि लड़के ने पढ़ाई करी है कॉलेज में कि नहीं, और लड़के की प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं. ये दो चीज़ें हैं तो दे कैन ट्रेन देम, राइट? स्टार्टअप्स देखते हैं कि ये सब क्या, अगर इसको कोडिंग आती है तो ये मेरे प्रोडक्ट को कल शिप कर सकता है. तो वो स्टार्टअप का माइंडसेट है. नाउ DSA पर्सनल लेवल पे
मैं तो कभी नहीं कर पाया, मेरे को तो नहीं आई डायनामिक प्रोग्रामिंग वट एवर, बट डीएसए मेक्स यू अ रियली गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। मतलब आपकी अगर आप मैं बचपन से मैथमेटिक्स फेल किया हूँ, मैं कॉलेज मैं स्कूल सब मैथमेटिक्स फेल किया हूँ, बट जिनको मैथमेटिक्स इनहेरेंटली पसंद है, जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, दे आर नेचुरली गुड एट डीएसए। सो इफ यू लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इफ दैट्स अ हॉबी, तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है या फिर आप फैंग में जाना चाहते हो, बाय ऑल मीन्स डू इट। और otherwise, what I generally suggest to people is do both. You're a student, you have got ample amount of time. तुम लगा दो 10 घंटे 12 घंटे, मत पियो शराबे बैठ के हॉस्टल में। तो तुम 10-12 घंटे अगर लगा दोगे किसी चीज पे, बोथ डेव एंड डीएसए, यू विल बी रेडी। एटलीस्ट लीड कोड मीडियम से ऊपर तो कोई कंपनी नहीं पूछ रही। लीड कोड मीडियम तक अगर आप कर लोगे, उतना कर लोगे, और गिन के 20 टॉपिक्स ही तो है डीएसए के, जिसपे आपको 50-50 प्रॉब्लम्स करनी है, डेली की 4 लगा लो और बाकी टाइम में डीएसए कर लो। आपके पास इतना टाइम है। So my advice is do both if you're young, if you're still in college. But if you have an interview coming up, which is a FANG, at least try solving good amount of, or I think Striver की sheet है, which is very popular, और mostly commonly asked interview questions होते हैं लीड कोड के। मतलब सारे लीड कोड हार्ड तो कोई भी नहीं पूछ रहा, लीड कोड मीडियम तक ही पूछ रहा है। तो हाँ, practice that that is once true. you set that method of problem solving into your mind, और वो patterns आप रखेंगे, sliding window whatever whatever, बहुत पहले किया था मैंने, but अगर वो समझ में आते हैं तो by all means do it. Development anyway is a skill that becomes a muscle memory over time. तो अगर आप 6 महीने से डेवलपमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट नोड के प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो, 2 ही बिल्ड कर लिया अगर आपने, यू वोंट हैव टू सेपरेटली सिट एंड स्टडी फॉर एन इंटरव्यू। इट इज़ लाइक अ सेकेंड नेचर कि आप इंटरव्यूज दे रहे हो क्योंकि आपको आता है। डीएसए इज लाइक यू हैव टू प्रिपेयर अ बिट कि इंटरव्यू आ रहा है तो मैं ब्रश अप कर लूँ, क्वेश्चंस कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस वही सेम घुमा फिरा के दे देते हैं, एन स्क्वायर का एन करना है, लॉग इन करना है, वट। So my advice to these junior or freshly out of colleges, do both. But if you're not, ask yourself what are your goals. फैंग है तो डीएसए करना ही पड़ेगा, देयर इज नो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, डीएसए ही करना पड़ेगा। और उसमें अच्छे लेवल, फॉर एग्जाम्पल गूगल ग्राफ्स वगैरह पूछती है तो वो भी करना पड़ेगा। बट इफ यू आर टारगेटिंग फॉर स्टार्टअप्स, मेक श्योर योर रेज्यूमे के प्रोजेक्ट्स आर रियली गुड फॉर दी, एटलीस्ट द पर्सन हु इज इंटरव्यूइंग यू इज यू नो, उसके दिमाग में थोड़ा है कि यार एक कैंडिडेट अच्छा है, तो सारे इंटरव्यूअर सेलेक्ट ही करना चाहते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करता इंटरव्यूज पे। मतलब इफ यू आस्क मी, आई हेट टेकिंग इंटरव्यूज। तो कोई भी अगर स्टार्टअप का बंदा बैठा है आपका इंटरव्यू लेने के लिए, वो इस माइंड से बैठा है कि यार इसको सिलेक्ट करना है, एंड देन ही फाइंड्स आउट कि भाई ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ये, तो फिर वो फिल्टर आउट करता है। इनहेरेंटली उसकी अप्रोच ये है कि इसको सिलेक्ट करना है, इसका सीवी ठीक लग रहा है, to go with that mindset. Or interviewing is a skill, you'll have to appear for a lot of interviews. I always say that every interview is a mock interview till you crack your first front end or back end or full stack role. So practice. एब्सोल्युटली। ये जो मैं करता हूँ ना पाजी, जो पॉडकास्टिंग का, ये एक तरीके में मेरे लिए वो एक प्रेप भी है कि इट गेट्स Yeah, मी ट्रेन फॉर टॉकिंग। yeah, मैं मेरे को yeah, कोई that is पोजीशन what में डाल happens. लो, मैं बात कर सकता हूँ, अभी अभी आदत हो गई है मेरे को। बट Yeah, यार मेरी ये भी बात आदत हो गई ऐसे। बिल्कुल आपका तो भाजी, मैंने ना, आई रियली एंजॉय योर वीडियोस इफ आई हैव टू टॉक Sure, अबाउट sure. टेक बेस्ड थिंग्स, क्योंकि मुझे ना Oh, ऐसा nice. आपका अपना बंदा लगते हो आप। ऐसा नहीं कि कोई जो लोग एकदम ऐसा, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट आई वॉच देम ऑन, एंड मुझे लगता है यार इस बंदे ने कितना पढ़ाई करी भाई, ये तो कुछ भी बोल रहा है, समझने में ही मेरे को 2 मिनट टाइम लग रहा है, मेरे को बार बार पीछे जाके देखना पड़ रहा है कि ये क्या बोल रहा है। बट आपके काफी वीडियोस में मुझे ये वो वाली फील आती नहीं है, लाइक आई फील लाइक अरे इट्स लाइक टॉकिंग टू अ फ्रेंड, कि Yeah, जिन जिन लोगों ने साथ में एक जर्नी देखी है, तो yeah, थोड़ा इजी हो जाता है वो, लाइक मैच करना कि अरे अच्छा ओके ही इज ट्राइंग टू टेल दिस टू अस। एंड yeah, ये जो आपने जो बात करी है, दिस इज रियली, दैट इज रियली ट्रू, कि आई आई कम्प्लीटली एग्री। जो डीएसए की बात है, कि पहली बात तो द होल पॉइंट इज देयर आर टू सेट ऑफ पीपल हु कैन डू इट। एंड पहली बात ये है कि जो डीएसए है, इट्स नॉट इनहेरेंट कि आपने एक बार कर ली तो हो गया आपका। आप yeah, 6 महीने से, आप अगर 6 महीने कर रहे हो, इफ यू बिल्ड लाइक 3 or 4 प्रोजेक्ट्स इन रिएक्ट एंड यू टेक अ ब्रेक, it's heavily unlikely you will forget what you did, because you at least yeah, know what the project is about. डीएसए वैसा yeah, नहीं है, जबकि आपको कंसेप्ट आती है, यू हैव टू सिट डाउन, बिकॉज आपको प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है। एंड इफ पीपल डोंट नो, नीट कोड करके एक चीज है, yeah, जिसका आई हैव सीन समबडी फ्रॉम दैट कंपनी हैव मेंशन्ड कि अगर आपने कभी प्रोजेक्ट एक प्रॉब्लम को देखा नहीं है, द odds ऑफ यू नॉट सॉल्विंग इट आर हायर देन यू सॉल्विंग इट, बिकॉज आपको पैटर्न नहीं yeah, पता।
pattern. So you have to sit Just like down. You have 12th class mathematics, NCRT absolutely. mathematics problems, right? Like you solve a lot of problems, so you get muscle memory, and exam में जाके आप सेम सवाल आ जाते हैं, आप सॉल्व कर देते हो, बट नहीं आ जाते तो आप अटक जाते हो. इट्स जस्ट लाइक 12वीं की मैथमेटिक्स फॉर मी एटलीस्ट. ये से नहीं नहीं पाजी, वो never मेरे लिए liked भी it. ऐसा ही था। पर मेरे को एक ही चीज़ की लेवरेज है कि मैं थोड़ा बचपन से ना, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री से नफरत था रादर देन मैथ्स। अच्छा. मैथ्स वाज अ लिटिल फाइन। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी। ये फिर भी I ठीक था। loved physics. Chemistry अरे though, chemistry maths were failed every time, but yeah, physics was favorite. केमिस्ट्री तो सर के ऊपर ही भाई। मेरे Yeah, को आज everything. आज भी नींद में कोई बंदा पूछता है कोई केमिकल फार्मूला, आई आई टेक 10 मिनट ब्रेक की, एक सेकेंड ये ना होता होगा कुछ, मुझे नहीं पता। Yeah. So, That's so crazy. that is a great thing that you have answered. ये ना I hope ये बहुत हेल्प करती होगी पीपल को. This might clear out some clouds. And इसके बाद मुझे ना एक और आपकी पर्सनल जर्नी से ये चीज़ जाननी है, जो आपने आउट ऑफ द कॉलेज, जनरली लोग टिपिकल इंडियन माइंडसेट की बात करते हैं हम लोग, आई वांट टू कीप इट टू इंडिया, एंड इवन यूएसए में आने के बाद भी इंडियंस ये जो करते हैं ये चीज़, या कहीं भी कोई भी कंट्री में आते हैं, कॉलेज से बाहर निकला, नौकरी पकड़नी, Hmm. नौकरी पकड़नी है, सैलरी आती है, हम लोग थंकवा लेके मजे करेंगे, इज द माइंडसेट Yeah. जनरली। Yeah. और मैंने आपकी जब प्रोफाइल देखा, एंड आई हैव गॉन अ लिटिल डीप इनटू व्हाट यू डू, मैंने आपके 2-3 पोर्टफोलियोज देखे थे पुराने, Hmm. when I was digging down and I found multiple portfolios of yours, and then the final one was with Eternity के, जो आपने वो उससे अटैच करके रखा था, and I was like, आपने नौकरी छोड़ के you have started to build these projects on open Yeah. source and SAS build करना स्टार्ट किया, SaaS build करना स्टार्ट कर दिया आपने, and then Sure. you are now doing a freelancing work. No, तो I'm not doing ये freelancing anymore. I'm actually running my own company now. I used to okay, do freelancing work okay, like I'm sorry up for that. until 1.5 year back. But yeah, I Okay. quit it and built my own team. अब तो पूरा transition कर दिया उसमें. Okay, so basically जो transition था ना, इसका what was the thought process behind it? It might inspire a lot of Money, people. तो मैं पैसा, money. हाँ, वो मेरा तो क्लियर कट ही वही था. मतलब जॉब में क्या होता है जनरली, मतलब नथिंग अगेंस्ट जॉब्स, आई हैव लर्न एवरीथिंग फ्रॉम माय जॉब. और अभी जो भी मेरे को आता है, जो भी मेरे बन रहा है वगैरह वगैरह, इज ओनली बिकॉज ऑफ वन पर्सन. हिज नेम इज विजय, who was my mentor in my previous job, and he taught me pretty much everything. So nothing against jobs, but jobs में क्या रहता है कि let's say you start at 25,000, okay? You get a 10% increment, 15% increment, 20% increment. After 3-4 years or 1 or 2 years, you switch, you get 20%. Again, वो percentage वाला increment है. तो उससे मेरे को scale नहीं दिख रहा था initially. And I was also freelancing on the side, okay? Because college times I was doing freelancing. So I knew what doors I could open back then. So जॉब में भी मेरा वो था कि अगर साइड में इतना बन रहा है तो यार थोड़ा तो और बना सकते हैं. जॉब तो चल ही रही थी. जॉब का प्राइमरी गोल वाज टू लर्न थिंग्स, एंड फ्रीलांसिंग का गोल वाज टू इम्प्लीमेंट दोज लर्निंग्स एंड बिल्ड थिंग्स फॉर क्लाइंट्स टू अर्न मोर. So that was the initial thought process. But I spent good 3.5 years. I led one of the projects in my previous company. And once I had 18 months of runway with me, that is when I left, because I was skeptical of leaving my job. क्योंकि उस टाइम पे लगता था कि जॉब टाइट है, जॉब मार्केट ये है वो है, छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए. जनरली लोग 6 महीने 8 महीने के रनवे पे छोड़ते हैं. मैंने 18 का छोड़ा था कि चलो और थोड़ा बैकअप रखते हैं. बट 18 के बाद when Eternity as a company, not UI, as a company, as the service business which is there, was making yeah, like 5-6 times my yearly salary a month, that is when I switched completely to this Eternity full time. But I made sure the transition was smooth. I made sure ki project which was dependent on me was no longer dependent on me. कि भाई I teach people around me what I carry out day to day. तो वो मैं easily KT दे के पूरा संभला लू के, क्योंकि it was a government project, so I had a lot of responsibility. तो वो दे दो आके I was like okay, अब कर सकते हैं full time. उसके बाद I took like 15-16 days break, and then I started building a lot of. So the first one was Eastern UI only, for that matters, oh, and it that worked. is
ये सुन रहे हो भाई, ये होती है प्लानिंग, नहीं ऐसा नहीं बाहर निकलते ही स्टार्ट कर दो कुछ। नहीं नहीं नहीं, बाहर निकले कुछ नहीं. फॉर एग्जाम्पल पीपल से there are two things I'm strictly against because I talk about majority of people. One is dropping out, the other is starting your own thing. First, dropping out because 90% or even 95% of Indians, सबके पास एजुकेशन लोन है, सबके पास सारी चीज़ें हैं, बहुत पैसा लगा के डिग्री मिलती है, तो एटलीस्ट उसका यूटिलाइज करो. और अगर गुस्से हो तो एटलीस्ट उसको यूटिलाइज करो. कॉलेजेस आपको कुछ पढ़ाएगा तो है नहीं ऐसा, बट इस देश में डिग्री तो मैटर करती है. दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन. पढ़ाते कुछ भी नहीं है, मेरे को भी कुछ नहीं पढ़ाया, मैं कॉलेज गया भी नहीं भाई, मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर ही गया हूँ, 7 सेमेस्टर में कॉलेज भी नहीं गया, तो मेरा तो वेस्ट हुआ है पैसा. एंड द सेकेंड थिंग इज कि दिस learnings comes into your hostel rooms is what I want to portray. Matlab, you have to learn on your own a lot of things, not just building. Once you start building, you have to take care of a lot of things like marketing, positioning your product better. You'll have to play with the pricings. You'll have to talk to the right set of people. You'll have to talk to a lot of people. वो सारी चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ती है, तो इट इज़ नॉट ईजी. और दूसरा, जॉब इज़ गुड. अभी आपको जॉब मिल रही है तो लो एंड लर्न एज मच एज यू कैन फ्रॉम इट, बिकॉज think of jobs as this, like somebody's paying you for your own learnings, is what I recommend people to take jobs into that perspective. Because मतलब हाँ, मैंने भी किया यार 14-15 घंटे काम डेली का फॉर 3-4 months, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, अगर मैं वो नहीं करता तो अभी ये कुछ भी नहीं होता. UI स्टूडेंट, UI बिल्कुल. एल्गोरिथम वगैरह कुछ भी नहीं होता. तो पढ़ाई तो मेरी असली वहीं हुई है. कोर्सेज से यू कैन ओनली गो सो फार. रियल वर्ल्ड लर्निंग तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और डेडलाइंस मीट करके आती है, तो वो चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो डोंट टेक तो जॉब्स. आई मीन, जॉब्स, अ कंफर्टेबल एंड वेल पेइंग जॉब इज़ अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यंगर जनरेशन. मतलब देयर इज एब्सोल्युटली. नो शेम इन working for someone and earning really good amount of money if you're skilled enough, if you're comfortable in a job, if you want to enjoy 9 to 5 and party on the weekends, all up to you. That was just not for me. Yeah. एब्सोल्युटली. आई मीन, एक चीज़ यहाँ पे मैं प्लग इन करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि जो रियल वर्ल्ड एंड डेडलाइंस मीट करने की जो बात है, Yeah. ये चीज़ जनरली जो आई डोंट नो विद द अदर कंट्रीज, बट मैं यूएसए में रहता हूँ इन न्यूयॉर्क, एंड मेरा जो पढ़ाई यहाँ पे जो अंडरग्रेड और मास्टर्स दोनों मैंने यहाँ से किया है, एंड Yeah. दिस डज हेल्प मी इन दैट सेंस कि जो मेरी मेरी और मेरी जो फ्रेंड्स जो इंडिया में बीटेक किए हैं, हम दोनों के बीच में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि मेरे पास एक अबंडेंस ऑफ प्रोजेक्ट की नॉलेज है, कि मैंने हर वीकेंड को बैठ के हमने वीकली असाइनमेंट्स की डेडलाइंस हिट करी है, फ्री Yeah. पास होते हैं हम लोग, एंड देन हम साइड में बिल्ड भी करते हैं, क्योंकि हमें मज़ा आता है कि हर वीक अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली ये सोचती है कि अगर ये असाइनमेंट के लिए कर पा रहा हूँ मैं, व्हाई डोंट आई डू समथिंग फॉर माय ओन लाइफ. Right. सो वो एक बेटर चीज़ है, बट दिस इज नॉट कम्प्लीटली इनफ टू डिसाइड कि यूएसए आना है कि नहीं आना है. उसके लिए एक अलग वीडियो है, वो देख लो आप जाके. ये उसके लिए नहीं है. सो दैट इज अ ग्रेट जर्नी ऑफ योर्स पाजी. मतलब क्योंकि अगर मैं जैसे आप बता रहे हो उसमें ही मुझे समझ आ रही है इन सम सेंस की यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल ऑफन दैट आई पर्सनली मीट कि भाई को कॉलेज से निकला, हवाबाजी में कंपनी खोलनी है, फिर वो लक हुआ चल गई. वैसा नहीं था. आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड जो प्लान है जो आप बता रहे हो, तो उसमें क्लियरली समझ आ रही है. एंड देन यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल ऑल्सो दैट इवन आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल एज वेल, कि जो लोग ना कॉलेज के लेटर हाफ में रियलाइज करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें कुछ करनी है, लाइक वी हैव टू डू थिंग्स टू बी लाइक टू स्टैंड आउट इन अ कॉलेज. जो आप पहले लाइक राइट फ्रॉम द स्टार्ट में से आप जो डेवलप करने का जो आपकी मेंटालिटी है, दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली इंस्पायरिंग यार. मतलब अब सुनते हुए लग रहा है कि शायद हमें भी वो करना चाहिए था, बट अब तो पीछे से जा नहीं Yeah. सकते हैं, तो अब से कर रहे हैं हम लोग. सो बाजी, ऑन दैट नोट, लेट्स सिंस आपने बात कर ही ली कि भाई अब हम लोग डेवलप करना जरूरी है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग कि कोई भी हो, whoever wants to start a tech journey, whether it's a student from a college that is pretty much starting just now, or a person who's interested in switching a career into tech, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? शुरुआत क्या होनी चाहिए उनकी? Like where should they pick up? Fundamentals of programming, C, C++, anything. Pick any language. Pick any language, whether it is Python, C. I recommend C because it is very low level. Teaches you a lot of things about programming and problem solving in general. तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाते तो मोस्ट ऑफ द काम तो वहीं हो जाता है आपका.
सो फॉर एग्जांपल सी सीख लेते हो तो यू गेट टू नो अबाउट पॉइंटर्स, आप मेमोरी एलोकेशन के बारे में सीखते हो, फिर आप यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स इनटू इट, यू गेट टू नो प्रोग्रामिंग. So coming from a different field, programming can feel something which is very alien to some people. So C is a very good entry barrier to that technology or to that field in general, computer science. So C सीखोगे तो you'll get to learn programming का bird's eye view, and then once you get into that slowly, you'll start to figure things out on your own. I mean, it is going to be very easy. C is the most difficult programming language that I have learned ever because I still don't get it. स्टिल मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लिखा हुआ है तो क्रेजी है, कभी पढ़ना मुझे उसका आज कोड. भी डर लगता है, क्योंकि एक ही चीज से डर लगता है या मुझे कि सी प्रोग्रामिंग में रन करने के बाद एरर आती है, बस ये आती है कि कोड डंप हो गई, समझ ही कोड नहीं डम. आता एरर कहाँ से आई। या एंड खुद you'll have ढूंढो। to be. हाँ, तो खुद ढूंढने में ही is where the learning lies. When you read your code line by line, when you actually struggle with your code editor and the programming language you're writing, that is when the learning happens. Not from any courses. I mean, courses can help you. It acts as a catalyst, but real learning happens when you beat yourself up against the keyboard. That's what I feel. एंड सो एंड व्हाट वुड बी योर सजेशन कि सी प्रोग्रामिंग तो हमारा जो प्रोग्रामिंग ओवरऑल एक स्टार्ट बन गया, सो लाइक मूविंग फॉरवर्ड हाउ शुड समबडी ये जो प्रोजेक्ट्स बनाने का जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट जेएस हो गया, रिएक्ट हो गया, वॉट एवर इट इज, लाइक देयर आर मल्टीपल विंग्स ऑफ दीज थिंग्स, तो Yeah. हाउ डू यू थिंक समबडी शुड फाइंड देयर एक इन दैट, लाइक उनका क्या होना चाहिए वो? हाँ, उसका भी एक सिंपल सिंपल मेथड है. फर्स्ट स्टार्ट बिल्डिंग एनी I'll tell you how to proceed with it. Start building with a web project. For example, you build some website, okay, wherein you have front end, back end, and DevOps involved. For example, you're using React or you're using HTML, CSS, and JavaScript only. Back end, you're using Node for your APIs, and DevOps way you're deploying it on a Docker container, okay, and hosting it on a DigitalOcean Droplet. 4 domains cover हो गए. इतने में you'll start to realize if you're interested in multiple things, for example front end or back end, or if you're interested in just one. For example DevOps, dockerization करने में आपको मजा आ रहा है, या Kubernetes cluster deploy करने में मजा आ रहा है, AWS से खेलने में मजा आ रहा है, वो सारी चीजें में you'll be able to better figure out कि what works for you. If nothing of that happens, mobile development में घुस जाओ, try out things into that. There is IoT, there are hardware programming, मतलब बहुत सारी चीजें which you can explore. But the easiest entry that you can take into this is through web, because web doesn't require you to set up a something which is as crazy as Android Studio or this iOS setup. So web is the easiest. Then you'll realize where your interest lies. DevOps में है तो वो करो, बैक एंड वो करो, फ्रंट एंड वो करो, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों है, फुल स्टैक करो. Eventually full stack engineers are also biased towards one or the other, like front end heavy होते हैं, back end heavy होते हैं, because full stack in itself is huge. I cannot call myself a full stack engineer till date because बहुत सारा है. I like doing front end, I pivoted towards that, so I call myself that. But yeah, there are various domains that you can explore, various verticals. I mean, it takes time, it takes a bit of time, but eventually if you dive deeper into web, you'll start to realize if you like it or not. If you don't like it, you can move to different things. That's the easiest if you're looking for a job or interest सो terms. बेसिकली अगर सम अप करूं, जो मुझे भी समझ आई ऑनेस्टली, कि ट्राई एवरीथिंग एंड फिगर आउट कि जिसमें Yeah, आपको ज्यादा मजा आ रहा है, लाइक yeah, अंटिल एंड because अनलेस आप तुम पैर नहीं रखने वाले हो, तुम्हें पता तो होने नहीं वाला है कि yeah, भाई yeah, कितने yeah, पानी में हो. सो yeah. मतलब हाथ फिगर पैर आउट, मारने पड़ेंगे. Yeah, true. सो द मोर यू फिगर आउट, वो होती है ना भाई, अराउंड एंड फाइंड आउट. Around and found out exactly. Yeah, बेसिकली इट्स दैट कि तुम किसी में भी हो, तुम इफ यू वांट टू लर्न यू हैव टू डू समथिंग लाइक दैट फॉर श्योर. एंड definitely. ये जो चीज है जो मैं पूछने वाला हूँ, इट इज अ लिटिल कंट्रोवर्शियल, ऑफ कोर्स, मतलब कंट्रोवर्शियल, सब लोग मानेंगे नहीं इस चीज से, कि Yeah, बेसिकली क्या होता है पाजी, कि काफी लोग कॉलेज का टाइम ना, मतलब स्पेशली मेरे जो काफी फ्रेंड्स हैं, मैं भाई बुरा मत मानना यार प्लीज, मतलब आपने स्टोरीज बताया, मैं पॉडकास्ट में यूज कर रहा हूँ. मैंने काफी yeah, लोगों को सुना है कि 4 साल कॉलेज में कुछ नहीं करते, फेस्ट अटेंड mm, करते हैं, मजे करते हैं, ये इंडिया की बात है कि मजे करते हैं, एंड दे एंजॉय देयर होल बैचलर लाइफ. और उनके पास दो रास्ते होते हैं इसके बाद. एक होती है कि तुम जाओ बाहर कोई कोर्स पढ़ाने वाले के पास, तुम 30 दिन की क्रैश कोर्स कर लो, फिर नौकरी पकड़ो.
दूसरा होता है कि वो मास्टर्स करने आ जाते हैं हम्म, यूएसए में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ. दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टोरी आई हैव हर्ड. सो आई वांट टू ठीक. आस्क यू कि व्हाट आर योर गुड फ्यू प्रिंसिपल्स जिससे एक स्किल गेन कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस बना इंटरेस्ट सकते हैं. मतलब इंटरेस्ट इज द सोल ड्राइविंग फैक्टर. मतलब टेक, आई honestly I hate tech. I hate every component on Easternity. Why I don't like building it. I don't like any component on Easternity. It is just one way for me to, you know, grow this as a tech business so that I can make a lot of money out of it. अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं भी है, ओवर टाइम उसमें इंटरेस्ट बन गया. सो इफ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग वन थिंग, यू कैन genuinely build interest into it. फॉर एग्जाम्पल यू सेड कि कॉलेज में 4 साल नहीं पढ़े और यू नो 3 दिन का क्रैश कोर्स ले लिया. सेम थिंग अप्लाइज विद पीपल ट्राइंग टू गेट इनटू जेई. फॉर एग्जाम्पल मी, आई वाज नॉट दैट मैच्योर कि आई गो अराउंड एंड स्टडी फॉर जेई. में एलन ड्रॉप सब किया मैंने. बट सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू दोज पीपल ऑल्सो कि 4 साल बाद भी नहीं पढ़े, जेई में भी नहीं पढ़े, तो आप पढ़ लो. इट्स नेवर टू लेट. बट you'll have to know why do you even want to do it, या फिर आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो. मतलब कॉलेज के एंड में तो समझ आ जाता है. जेई का मेरे को समझ आता है इसलिए क्योंकि पीपल आर यंग. मतलब 14-15 साल के बच्चे को क्या ही समझ होती है. बट इफ यू आर 20, 18, 19 whatever, तो यू शुड हैव इनफ विजडम इन यू कि आपको अगर लाइफ में इस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है तो कैसे करना है. तो ये तो आई मीन वी हैव टू have some maturity at some point in time. 4 साल के बाद भी if you're taking 30 day का क्रैश कोर्स, अगर मैं मन नहीं है किसी के लिए कर रहा हूँ, मत ही करो. बट इफ यू आर genuinely interested, there is still a lot of time left. मतलब कुछ भी नहीं है. 20, 25, I'm like 26. It doesn't matter. अभी भी मैं अगर सीखना चालू करूँ तो till 28 I'll be well versed. Since AI is here, I can exponentiate my learnings and stuff. एंड हाउ लाइक ये जो पूरी स्किल गेन करने का जो तरीका है, पहले जो आई ऑल्सो यूज टू लव दिस पार्ट की पहले हम जब हैकाथॉन्स करते थे Yeah, पूरी जोर लगानी पड़ती थी, पूरी रात बैठ के हम लोग बिल्ड करते थे. yeah, एंड अब तो कुछ नहीं. अब हम लोग मैंने लास्ट टाइम एक हैकाथॉन किए थे, वेरी रिसेंटली गए थे हमने. उसमें कुछ नहीं है, हम लोग bold.new यूज किए. आधे आधे पौने घंटे में पहली बात तो आउटलाइन ही बन गया था. हमने फिर रेस्ट किया और फिर लेट रात को जब मजा मन करा थोड़ा गाने वाने सुनते सुनते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का कंपोनेंट्स डाल लिए. दूसरे दिन सुबह तक तो प्रोडक्ट रेडी थी विथ मिनिमल yeah, एफर्ट. exactly. With minimal effort. And that is why products like Bolt sell, and that is why we are also building something like that, because ultimately these are all monotonous tasks. Creating a component, making it look beautiful is a monotonous task. Everywhere where human intelligence is not involved is a monotonous task that can be replaced by AI or any other entity for that matter. तो अगर आप अच्छे हो मोनोटोनस टास्क पे, वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है. आपका ब्रेन कहाँ लग रहा है वो डिसाइडिंग फैक्टर है. तो put your time and effort into that, and that is where fundamentals come in. That is where problem solving comes in, and that is where your computer science wala engineer mindset comes in. So that is what I recommend to people also. Monotonous is anyway going to get replaced. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. आई मीन इवेंचुअली यार हम इंजीनियर्स जो लोग होते हैं whether it Yeah, is no matter what, I have said this in the previous podcast as well कि वो एक डिग्री नहीं है, वो rather as a matter of fact वो एक लाइफस्टाइल है कि तुम प्रॉब्लम right. सॉल्व करना सीख रहे हो तो तुम Yeah, कोई भी तरीका लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. तो अगर तुम हर दिन एवरी प्रोजेक्ट के लिए आप एक कमांड मारो npx क्रिएट न्यू रिएक्ट नेक्स्ट that's प्रोजेक्ट monotonous, करके right? तुम सब कर सेट करो, फिर तुम एक पेज राउटिंग सेट करो, तुमको इससे अच्छा लाइक इट गिव्स यू आउटलाइन ना कि तुम इससे स्टार्ट Yeah, करो. तो दैट मेक्स द थिंग्स boilerplate फास्टर. says. एविडेंटली अगर देखा जाए तो इट्स ए वेरी गुड थिंग टू मूव फॉरवर्ड एंड बिल्ड क्विक. Yeah, तो नाउ yeah, दैट इफ यू हैव अ आइडिया एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि भाई इससे बिजनेस बन सकता है कि नहीं, यू कैन ट्राई आउट वेरी क्विकली बाय क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप एंड लीविंग इट टू पब्लिक. yeah, पहले ऐसा नहीं था, पहले टाइम लगती थी. एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट कि पहले टाइम लगता था कि पहले तुम बनाओ खुद बैठ yeah, के. तो उसके लिए 1-2 महीना जाएगा कि पूरी एंड प्रोडक्ट बनने में, और तुम्हें टेस्टिंग वेस्टिंग भी करनी होगी. फिर तुम रिलीज करते हो, फिर उसके बाद नाउ इट कम्स डाउन टू लाइक 2 or 4 weeks मैक्स अगर तुम एक टीम के साथ कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग एआई प्रॉपरली. yeah. इट True. इज ऑनेस्टली गोइंग टू फास्ट
and the person who matches the space will Way be, too of fast. course. Way too fast. And जो भी Way, way. जितने लोग भी इस स्पेस को मैच कर पाते थोड़ा बहुत भी and will upskill equally with this space will of course make the bread, which is an absolute thing. Definitely. True. And now बंदे के पास देखो पाजी, अब आपके अगर यहाँ तक का किसी ने पॉडकास्ट सुना और अभी मान लो वो इस फेज ऑफ लाइफ में अब अपना कहाँ से स्टार्ट करनी सीख लिया, स्किल गेन कैसे करते समझ लिया, अब वो बंदा आ गया चौथा साल पे या मास्टर्स खत्म कर लिया या वॉट एवर इट इज, एंड अब उस बंदे को चाहिए या समवेयर अब उस बंदे को चाहिए एक इंटर्नशिप या एक फुल टाइम जॉब. हम्म. तो अब इसके ऊपर जो आपके ओपिनियन है, व्हाट वुड यू से कि कैसे करना चाहिए इस चीज को? व्हाट आर द फ्यू टिप्स दैट यू वुड गिव फॉर अ पर्सन टू फाइंड अ जॉब? Finding a job is pretty straightforward. I mean, I don't believe in applying on LinkedIn, even though I got my first job through LinkedIn, but that was like 4 5 years, 7 years back precisely. तो वो तो अब मेरे को नहीं लगता इतना काम करेगा. द बेस्ट बेट दैट यू हैव इज जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, जो आपने काम किया है अपने कॉलेजेस में या व्हाटएवर मास्टर्स में, उसको दिखाना, उसको पैकेज करना और उसको बेचना एज एन showcase your work so that you get into the eyes of the recruiters. I believe in inbound marketing more rather than outbound. माने मेरे को रिक्रूटर पे रीच करना ना पड़े, रिक्रूटर मेरे पास आए, और रिक्रूटर मेरे पास आएगा क्योंकि रिक्रूटर भी एक ट्विटर या लिंक्डइन पे है, और वहाँ पे अगर मैं अपना काम शेयर कर रहा हूँ और मैं डेली बता रहा हूँ कि मैं ये बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, या मैंने ये बनाया इस पे इतने यूजर से, या फिर ये इसका ये स्टैक है, या फिर फॉर दैट मैटर ये चीज़ ये सॉल्व करती है, you'll eventually get some eyeballs, or that eyeballs eventually you'll have to convert to a job or a freelance opportunity. For example, I built AlgoChurn करके एक front end interview platform, practice interview platform. So I shared it on X, Twitter back then, and I shared it on LinkedIn. And बहुत डेली मैं बात कर रहा था कि मैं ये ऐड कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, ये फीचर अच्छा हो, ये फीचर अच्छा होगा. Eventually it reached out to many people and one of them offered me a job. So that is how you do it. That is the easier way because you already have projects. Since you said key people have already built projects into their masters or bachelors, तो वहां से वो एक आती है. The second best I feel is referrals, क्योंकि आप छोटी से छोटी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल मेरी जैसी कंपनी को which is like 2-3 years हुए हैं उसको H20 को रजिस्टर किए, मेरे को ही दिन के 100 आ रहे हैं रेज्यूमेस. मैं हायर भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को दिन के 100 आ रहे हैं, डीएम्स वगैरह सब मिला के. अगर जॉब पोस्ट डालूँ मेरे को 1000 भी आ जाएंगे. तो मेरी ऐसी कंपनी को 1000 आ रहे हैं, तो आप सोच लो गूगल को कितने आए हैं. तो वहाँ पे ये पर्सनल टच और रेफरल्स काम करते हैं. इफ़ यू थिंक आपका डीएसए स्ट्रांग है, इफ़ यू थिंक आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं और आपकी सीवी में दम है, आपने हैकाथॉन्स जीते हैं, आपकी कोड फोर्सेस पे कोई रैंक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट फैंग, जिसमें में जाना चाहते हैं, आपके कोड फोर्सेस पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, आपको डीएसए बहुत अच्छे से आता है, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्लियर है, उसके साथ आपकी सीजीपीए है, और उसके साथ आपका वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, देन यू हैव अ शॉट एट एन इंटरव्यू जिसमें 7-10 राउंड है. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल दुकान करके हैं सुभाष और सुमित की, गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, रोल आउट डॉट साइट करके बना रहे हैं. तो हाउ दे हायर इज दे पोस्ट अ फिग्मा लिंक ऑन टू देयर ट्विटर, जो उसको सबसे जल्दी बना देगा या जो उसको सबसे अच्छे से फिग्मा टू कोड कर देगा, they'll hire it as an intern. They'll hire the person as an intern straight up. तो वो अभी भी करा था उन्होंने रिसेंटली. तो आपको क्या करना है, आपको फिग्मा देखना, आपको कोड में डालना है, और आपको लाइव लिंक वर्सेल वगैरह पे डिप्लॉय कर देना, और आपको बता देना कि मैंने ये कर दिया. they'll reach out, they'll hire you as an intern. इंटर्न में आप लगाओ जान, आप 2-3 महीने मेहनत करो, टेक अ फुल टाइम इंटरव्यू, मतलब फुल टाइम जॉब ले लो. बहुत बहुत अच्छा चिल दुकान करके उनका स्टार्टअप है. This is very आप 2 साल काम कर लिया, 2 साल आप डीएसए रगड़ लो, या 2 साल आप काम ही ऐसा कर लो कि मतलब गूगल के रिक्रूटर्स आपको रीच कर रहे हैं कि भाई आप इंटरव्यू कर लो हमारे साथ, काम ही ऐसा कर लो. मतलब आई बिलीव इन पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम, डूइंग इट थ्रू योर स्किल रादर देन आस्किंग पीपल कि मुझे ले लो. इंस्टेड यू शुड बी लाइक कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स है भाई, चाहिए तो ले ले टाइप्स. दैट्स माय आइडियोलॉजी एंड दैट वर्क्स. आपका भी एक रहता है
and that is why I don't go into the jobs market as well right now, because हो गया मेरा job शुरू, मतलब I'm not the kind of person who can take into भाई jobs. आप तो सेठी हो गई हो। अब तो गया ही है Um, आपको किस चीज का भाई हाजी जॉब। but आपको still, लेने के लिए कंपनी को सोचना पड़ेगी इसको किधर डाले हम लोग। नहीं जॉब्स तो नहीं हो पाएंगी, मतलब देयर कम्स अ टाइम इन एवरीवन्स लाइफ कि भाई जॉब नहीं करनी, खुद का कुछ करते, बट it has to be a really calculated decision. That is why I say कि don't drop out, don't go कि like मेरे को जॉब नहीं करनी, सब कर लो पहले। कुछ रियल लाइफ में थोड़ा बैकअप चाहिए होता है, मेरे को तो बहुत ही चाहिए था, 18 महीने का चाहिए था, तो रियल लाइफ में बैकअप चाहिए होता है। तो बैकअप आपके पास अगर सॉर्टेड है, देन यू कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क कि भाई अगर मेरी 3 महीने में जॉब नहीं लग रही या 6 महीने नहीं लग रही, 6 महीने बहुत होता है भाई यार, 6 महीने में डेली अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी फिर भी जॉब नहीं लग रही, तो ज़्यादा मेरे में कोई दिक्कत है या कुछ, तो फिर 6 महीने में जॉब नहीं लग रही तो आपके पास एटलीस्ट बाकी बचे मंथ्स का रनवे है कि आपके महीने की सैलरी आ रही है टाइप। तो वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। अब आपके पास 2 महीने के पैसे नहीं है और आपने जॉब छोड़ दी कि भाई मेरे को किसी भैया ने बोल दिया है, मेरे को पाजी ने बोल दिया कि जॉब छोड़ दो, वो नहीं चलता भाई, वो उसमें लग जाता है बढ़िया से। इससे बढ़िया टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, हर चीज टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क उसमें, कि आपका पैर, मतलब रिस्क तो है, जॉब छोड़ना इज अ रिस्क, बट इट इज कैलकुलेटेड बिकॉज आपके पास पैसे जमे हैं। तो वो चीज ध्यान में रख के करके वो सॉल्व हो जाता है यार। क्योंकि मोस्टली नो मैटर वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, पहली बात तो रोटी कपड़ा मकान तो जरूरत है ही, नो मैटर आप क्या भी कर रहे हो। सबकी है तो सबकी तुम है। उधर तक का मैनेज अगर नहीं कर पा रहे हो एंड यू वांट टू डू एनीथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि पाजी अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल मेरा ही देता हूँ, मतलब मैं स्टार्टअप नहीं कहूंगा अपने आप को इस चीज में, बट मैं अभी रिसेंटली आई बिल्ड प्रोजेक्ट्स एवरी वीक। या मैं हर वीक को कोई नया आइडिया पकड़ के चलता हूँ एंड वो पैरेलली ऐसा है कि वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन लाइन नहीं लिखता, it's like that कि I just sit down for 1 week, I get obsessed with some idea, I build, I feel this is जो भी है, and then if I get a new idea in between I start with that as well, and फिर मैं वापस कभी देखता हूँ कि जब बोर हो गया कि अरे यार ये आइडिया बढ़िया लगा था मुझे, इस पे वापस जाता हूँ मैं, एंड इसके बीच में आई हैव स्टार्टेड पॉडकास्टिंग, जो मैं ये चीज करता हूँ अभी। एंड अगर मेरे पास, आई एम फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज एंड मैं कॉलेज में ना टीचिंग असिस्टेंट का काम करता था। तो यूएसए में क्या होता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम करते थे हम लोग एंड वी गेट लाइक वेरी गुड सैलरी यूएसए के हिसाब से, अच्छी मिलती है थोड़ी बहुत, मतलब वहाँ पे एज अ इज्जत है स्टूडेंट। टीचर्स। तो मेरे को ऐसा था कि मैंने पैसा बचा के रखा था मेरा, कि मुझे पता था कि थोड़ा टाइम वाइम लग सकता है बाहर निकलने के बाद, एंड अब मैंने इस पे डालने के लिए मेरे पास पैसे थे, इसीलिए अभी आज जो भी कंटेंट मेरे चैनल में बन रहा है ना वो इस पे डाला था, इसीलिए इतनी क्वालिटी में बन पा रहे हैं लोग। वरना इवन दो इफ आई टॉक 100 गुड थिंग्स, इफ द क्वालिटी इज नॉट वेल नोबडी इज गोना लिसन टू इट। इट्स वेरी सिंपल। तो तुम्हारे राइट। पास जो भी करना है, अगर कल तुम कंपनी भी खोलना चाहते हो ना, तुम्हारे पास इतना बेसिक अमाउंट ऑफ पैसा होना चाहिए ताकि तुम लोगों को जाके दिखाओ कि ये मैंने बनाना का प्लान कर रहा हूँ। दैट इज समथिंग विच एब्सोल्युटली। इज अ रियली वैल्यूबल एडवाइस जिसने आपने दिया, एंड that brings us to the point where हम एक पूरी फुल सर्कल का जर्नी बता दिए लोगों को कि आपको कहाँ से शुरुआत करके किस तरफ पढ़ते जानी है, एंड हाउ डू यू एंड अप द ओवरऑल आइडियोलॉजी इनटू अ जॉब, और जो भी आपको अगर कल कुछ कंपनी भी खोलनी है तो कैसे खोलनी है। एंड वन मोर थिंग जो आपने स्पेसिफाई किया, एंड आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन इट मोर, कि जो जो भी तुम बना रहे हो आपका एक मुझे वेरी विविडली याद है, आपने लिंक्डइन में एक पोस्ट डाला था कि अगर आप 10 प्रोजेक्ट बना लिए एंड आपने किसी को बताया नहीं, बस गिटहब पे डाल के रख दिए, तो कोई नहीं देखने वाला, ढिंडोरा कोई पीटनी पड़ती है। डिंडोरा तो पीटना पड़ता है भाई। मैं तो टी शर्ट बनवा लेती भाई, एल्गोचन वैल्गोचन। that मतलब was हाँ, that love with my products. that is something that I would really also put some light on and tell people कि आप ये चीज़ करो, मेक श्योर यू ट्विटर पे डाल रहे हो, लिंक्डइन पे डाल रहे हो, या आप मैं तो इंस्टाग्राम के अपने लिंक्स पे भी डाल लेता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बनाया मैंने, चेक करो, Yeah, कि मेरे अपने फ्रेंड्स भी चेक करके बता दें कि भाई कैसी लगी। तो इट्स लाइक समथिंग दैट आई एंजॉय ऑनेस्टली, एंड आई होप यू आर आल्सो डूइंग इट, सो दैट आप पता नहीं कौन कौन सा वाला चीज़ देख सकता है। एंड रिसेंटली मैंने ये भी बोला, पिछले वाली पॉडकास्ट में बोला था मैंने कि एसिमेट्रिक रिटर्न कहते हैं इस चीज़ को, कि आप अगर ये सोशल सिमेट्रिक मीडिया रिटर्न। यस, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहाँ पे अगर मैं अगर कोई वीडियो डालता हूँ, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है ये, या वो मेरे पापा से लेके शाहरुख खान तक कोई भी देख सकता है। शाहरुख खान ने देख लिया, घर बुला लिया, अगली मूवी में रोल दे दिया, ये सिमेट्रिक रिटर्न।
एग्जैक्टली, यू नेवर नो। या सिर्फ मेरे घर वाले ही देख रहे हैं बैठ के, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। द पॉइंट इज Yeah. कोई भी देख सकता है, तो थिंक ऑन द बेटर साइड। एंड अगर तुम डाल रहे हो कोई प्रोजेक्ट और कोई मान लो गूगल का रिक्रूटर ने देखा और उनको लगा कि भाई ये फीचर पे हम शायद काम करना चाहते हैं, या ये फीचर मुश्किल है बनाना एंड इसने बनाया, तो दिस ही कैन बी ऑफ यूज। सो मेक श्योर आप बाहर बता रहे हो लोगों को, यू आर लेटिंग पीपल नो कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, एज पाजी हैव सेड, दैट वाज वंडरफुल। एंड नाउ कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसके लिए मैं भी वेट कर रहा था क्योंकि मेरी पोर्टफोलियो भी उसी में है। तो पाजी चलो हम थोड़े प्रोजेक्ट्स जिसको हमारे प्यारे व्यूअर्स ने जो डाल के भेजे हमारे लिए, आपके पास जो मैंने एक्सेल भेजा, इफ यू कैन शेयर द स्क्रीन एंड यू कैन गो थ्रू द प्रोजेक्ट एंड यू कैन जस्ट One second, I'll check where the Excel is. या एब्सोल्युटली। एंड अगर किसी का इस Again. पे प्रोजेक्ट नहीं आया भाई बुरा मत मानना, सॉरी यार, हमको बेस्ट निकालना था क्योंकि पाजी के पास भी हम वी कांट टेक लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम पाजी, तो हमने ऐसे जो हमारे लिए टीम को बेस्ट लगी वो उखाड़ के मुझे दिए है। मैं आपको एंड में एक छोटा दे देता हूँ, पर्सनली मैं आपके सबका प्रोजेक्ट्स को एक बार रिव्यू करके मैं एक छोटी सी क्लिप एंड में डाल देता हूँ, सो यू ऑल्सो डोंट फील बैड, बट द बेस्ट प्राइस विल बी गोइंग टू पाजी। No, do you want me to share my screen? हाँ हाँ, सो यू कैन लाइक Presenter? फ्रीली, नहीं नहीं बस Screen, right? शेयर स्क्रीन होती है Entire स्क्रीन। screen. I'll share my entire screen. हाँ हाँ बिल्कुल। Eastern use के एक second. Okay. हाँ आपने बनाया है ऐसे चीज से पाजी, मुझे मुझे बहुत बढ़िया लगता है। Nice. I like the hero Manas Kush. Okay. Portfolio website, right? या ए पोर्टफोलियो। Okay. Manas Kush, full stack developer. I build things for the web. Okay. Can have a better description, like Next.js dev focusing on building SaaS products for startups. Depends goal क्या है, हायर होना चाहता है या फ्रीलांस करना चाहता है, वो डिपेंड करता है. Nice buttons. These buttons, I believe these are from Magic UI, but navbar keep it as simple as possible. So what I would recommend, contact me is nice. Chat on WhatsApp is really nice. Form कोई नहीं भरता. I like this chat on WhatsApp directly. I can connect the person. Want to hire me? ये मेरी पोर्टफोलियो से उठाया साल ने. सही है. Yeah, like the hero section, basic, good. Description can be better. Work experience पे चल लेते हैं कि one page. I like one page websites in general when the portfolio website is the cause of concern. एक पेज बहुत है. Basically, if I'm a recruiter or if I'm a client who's trying to approach you, I don't have that much of management. क्योंकि assume you have a list of 100 people who you want to interview and you have 1 hour. तो आप कौन सी लोगे उसमें, इज हाउ यू अप्रोच दीज पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, बिकॉज गोल तो हायर होना या फ्रीलांसर को हायर करना है ना, तो वो है. और अच्छी दिख रही है तो इट्स अ प्लस. अबाउट मी, मॉडल कोई नहीं खोलता अबाउट मी कि एक लाइन लिख दो, अबाउट मी पढ़ता भी नहीं है कोई, बट इट्स ओके. यू कैन कीप अबाउट मी वाला थिंग हेयर. बट या, फुल स्टैक डेवलपर, मिस्टिक ग्राफिक्स करके कोई कंपनी है, माई फरीज करके, मेरे से ओके वर्क एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स Prospera, we care, work, nice. एक देख लेंगे प्रोजेक्ट. इसमें भी एस्टर्निटी, ये तो प्रो वाला है. अच्छा, यूआई में choose the right career with Prospera counseling services. Schedule a call with us to discuss the right path. Schedule a call is I would say friction, because जाना, शेड्यूल करना और कॉल पे आना, 3 steps, very hard. Instead, have a type form or a simple chat feature like Crisp or Intercom, wherever, so people can chat with you. Chatting is easy, getting on a call and talking is hard. Nobody clicks on book, because personal experience, Easternity UI पे book call था पहले, used to get on calls, but chatting का conversion rate is through the roof instead of this book call. एंड दिस हैपेंड इन लास्ट 2 months। ये Yeah. मैं बता सकता हूँ कि मैंने एक बार ट्राई किया था कि कॉल बुक करके आपसे पॉडकास्ट ले लूँ। Yeah, so I changed it because chatting is easy for me. I can just go onto intercom and reply at my own convenience. Call is, a little difficult because I have to free up my time, talk, build connections and stuff like that happens. Messages That is true. messages are async. So if you're looking for a job or looking for a client, you want to make it as easy, as simple as possible. I like the design overall. This image, I don't know what it portrays. ये एकदम बीच में आ गई. सेम, नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है वो, मेरे को टेलीग्राम भी पे नहीं समझ कुछ आया लिंक मुझे है, भी मैं नहीं नहीं देखा। क्लिक कर रहा टेलीग्राम, बट ऐड है तो भाई
Again, Magic UI, Skill Globe, doesn't matter. मैं पढ़ भी नहीं रहा. Remove skills or Skill Globe in general, or whatever you write 20, 30, 40 skills in your portfolio, because 20 साल के गूगल इंजीनियर भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते कि उन्हें सब आता है. हम तो फिर भी नहीं है. मेरे पोर्टफोलियो पे प्रोग्रामिंग गाली लैंग्वेजेस पड़ने वाली है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज, क्लाउड डेटाबेसेस, ठीक है, ये सब आता है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. This is more of a resume come portfolio website. Decent, looks good, looks simpler. But what I would recommend is add a photo of yours, add one line about this, your name, and then description, and orient this towards either jobs or freelancing, depending upon your goals. दोनों चाहिए तो have separate pages wherein you can send, for example, slash freelance to some client and slash jobs to some recruiter. उसके tailored करो, थोड़ा effort डालना पड़ता, but yeah, I think these are my 2 cents on this one. Let's move on to the next one. Everything by AK Sai Vishnu and Deep Kadiala. Okay, nice. I like the background and the sparkles. I think magic, yeah, but yeah, I love it. Software developer. Okay. Okay, this is okay. Nice. I like this. एस्टर्निटी I भाई. like I like this component in general because this gives this Mac wala doc, which is handy to me. And most of the recruiters use MacBooks and stuff, interview. तो थोड़ा एक फैक्टर आ जाता है कि भाई बढ़िया है. Cool. Moving on to the next And it's next like you have section. to click on the about or something. हाँ, तो you can possibly have a scroll because this is natural. Scrolling is natural. Yes, yes, At the yes. end, the Okay. goal should be to make it as easy for the user as possible. So scrolling pe you can, if you have this scrolls to about, that will be great. About me, one thing I would love to have here is this. I do it everywhere. Max width 40 rem or 50, 60 rem. बस इतना. Okay. If it is a portfolio website, इतना. बिकॉज माइन इज 16 इंच और मेरा अल्ट्रा वाइड भी है, उस पर पूरा फैल जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता. आइडियल रूल इज, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव माई ओन पर्सन. दिस दिस इज टेकन फ्रॉम डायरेक्टली ली रॉब करके, जो वर्सेल में काम करते हैं, हाँ, उनसे yes. आई फोक्ड इट. तो अगर ली रॉब की पोर्टफोलियो देखेंगे, दिस इज इन माई ओपिनियन द बेस्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट वेर इन यू शेयर योर रॉ थॉट्स. Is this is my ideal website. This is how an ideal website looks like, if you ask me personally. But this is not what most of the people Simplistic. like. Yeah, all raw wisdom and beautiful transitions कि also. आओ देखो निकलो बस. See this Lee Rob, Lee Rob, Lee Rob, all micro interactions, and it goes down. This is what is fascinating to me. Not all the showbazi that you see on Asian TV, contrary to what I build, but this is what people want, so I build that. But I like something which is like this, simple. I would love to share my raw thoughts. That comes when you're 7, 8, 9 years into your career. Full stack dev, New York, 2 year experience, having currently your master's in computer science, beyond tech and passionate. Okay, this all can be condensed down into some UI which is, uh, bullet pointish. For example, checkbox, full stack dev, checkbox, 2 year experience, checkbox, master in computer science, checkbox, podcast. I did it with this because I also wanted to have all those things, but nobody reads it. So I had it in other cool things. करके करके रहेगी, इसको पढ़ना पड़ेगा. Yeah, this is good. Yes. So yeah, this is something that you can implement here. But yeah, I like this. This should be at the top because that explores personality. Personality. So everyone at the end of the day is human, right? Humans Yeah. love talking to humans. So the more you can project that you're a human, which is very difficult to do, by the way, the better. इस पे मैंने टाइमलाइन लगाया था नीचे. Okay. पूरा ये Uh, अब तो मुझे समझ आ गया Smiley. कि इसकी ज़रूरत नहीं है. Yeah, not required at all, Java. But this is a cool effect in general. This you can use when you want to showcase your products, as in product ka thumbnail, so they don't have to Yeah. click and they can just zoom in. This is a lens component, I believe, from A study. Yes, yes. So yeah, cloud and DevOps. Take. Okay, this timeline. Okay, the timeline is a personal touch that I feel. I love writing my own timelines, but this again exhibits personality. Ki
monotonous नहीं है. The person is talking about themselves, so they are human, projects your human side, which is the goal of a portfolio also. So yeah, podcaster एक experience हो गया, बहुत ही स्टडी यूज किया भाई तुमने. भाई मैंने निकाल लिया भाई, सारा जो है वो सारा रगड़ लिया भाई मैंने। हाँ. क्या ही बताऊं मैं तो। Yeah. Okay, nice. Cool. Work exercise, पढ़ाई 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 पढ़ाई. Cool. Yeah, human touch. Again, I love this section. Generally, wherein I get to know the person is where trust establishes, and trust is very inherent to humans. So any recruiter or client comes, they have a bit of trust on you, so they are willing to bet on you. So trust. This timeline is all about trust. Cool. Projects पे आते हैं. Evaluatron AI powered auto grader. Okay. Bookshelf library management बहुत देखी. लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस बहुत देखे हैं. AI powered जब अपनी चैट ऐप देखी है. ABM फाइल रीडर विद मेमोरी मैनेजमेंट देखा है. वेब टूल बेस्ड एक्सेलरेटिंग देखा है. तो पहले ही देख लेता हमारा ऑटो ग्रेडर. Okay, this is good thing. This is good for SEO. So यस, you have your project and you have your project का description and stuff written here. This is good for SEO in general. तो you should have these things. मतलब अगर है तो बहुत बढ़िया. Auto grading platform developed in social library. Okay, one thing is, मैं तो पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिव्यू करना है. इतना कोई हाँ, पढ़ता नहीं है जनरली, बट I should be able to figure out what the project is about through this title and description. I focus on it a lot. So Valiton is an ओके, AI-powered auto-grader designed to streamline the grading process for educators and institutions, providing accurate and objective evaluation of student assignments through predefined rubrics. Whatever this is written here, you can simply say evaluate students better with AI. Done. उतना ही. Short and simple, भाई conveys what the सही में project is about. मेरे Yeah. को लाइक एक झटका लगा सही में भाई, सिंपलिस्टिक एक लाइन में हो गया वो तो. Yeah, दैट that इज is what ट्रू. sells. That is what ultimately the goal of a portfolio website, or again goal driven approach. गोल क्या है कि या तो हायर होना है या तो क्लाइंट लेना है. पोर्टफोलियो क्या है. तीसरा होता है कि जनरली आपको मजा आ रहा है लिखने में, तो यार राइटिंग ब्लॉग्स. तो अब अगर आपका वो तो अब प्रोजेक्ट आने है वाला है भाई. वैल्यूट्रॉन AI पावर्ड ऑटो ग्रेडर, और अगर मेरे को यही पता चल जा रहा है कि वो क्या है, सॉल्व सम हाँ, प्रॉब्लम, देयर इज सम प्रॉब्लम एंड यू आर कमिंग अप विद द सॉल्यूशन, एक लाइन में वो हो जाए तो बढ़िया है. इतना पढ़ना और उसको डाइजेस्ट करना और फिर नीचे जाना इज डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन जिसके पास 10 से 20 सेकंड है आपकी पोर्टफोलियो स्क्रूटनाइज करने के लिए. यस, फेयर. So Veritron whatever, उसके लिए I have given you what you can write or replace it with. ईस्टर्न टीओ पे बहुत बहुत मैंने इस पे रिसर्च करी और बहुत मैंने देखा है क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा. तो मैं भी बहुत लिखता था कि ये बिल्ड वर्ल्ड क्लास वेबसाइट सेट दिस एंड दिस, और 10 लाइन का लिख दिया. इंस्टेड सिंपली टेल द यूजर व्हाट इट इज अबाउट एंड टेल देम व्हाट दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट. क्योंकि मैं इस वेबसाइट पे आ रहा हूँ इस पर्सपेक्टिव से कि मेरे को क्या मिलेगा. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ये पोर्टफोलियो की वेबसाइट क्या है. अगर मैं रिक्रूटर हूँ तो मेरे को ये देखना है कि ये मेरी कंपनी के पैसे कैसे बनाएगा. क्लाइंट हो तो ये प्रोजेक्ट कैसे बनाएगा बस. और आपको वही पिच करना है. सिंपल सिंपल बिल्कुल. फंडामेंटल्स. Cool stuff. Nice project, Valotron. Nice. Let's move on to the resume. दैट विल Okay, टेक टू गूगल ड्राइव. this is your resume. Cool. Podcast. Oh, this is nice. This is something which is better than certifications, better than co-curricular activities, that you have your own podcast, which is like instead of okay, taking to भाजी a वो भी separate one. एस्टर्निटी की है भाजी. Okay, this. Okay, हाँ this जी, is वो a भी model. एस्टर्निटी की है पूरी. Nice. Yeah, maybe okay. Separate routes. Cool. You can have a podcast page here also, same page, हाँ, and then you can redirect to maybe YouTube or wherever you're hosting Spotify. वगैरह. Yeah, all in all, great portfolio. But yeah, scope of improvement wherein. या So श्योर. if I land here, what you can probably do here is maybe have your projects here, your timeline here, and your podcasts here, so that I get to know your personality in like 10 seconds. उतने में ही मेरे को ओके. पता चल जाता है कि यार इफ आई एम इंटरेस्टेड और नॉट. तो इतने में ही पता चल हाँ, हाँ, जाएगा. हाँ. यू हैव ऑल दिस स्पेस. या. तो यू कैन प्रॉब्ली हैव projects, podcasts, work experience or timeline, whatever, and you can have a scroll or whatever. But yeah, works either ways. Cool. Move on to the next one. Good for भाई, मेरी ही फोक कर लिया तुमने.
this is mine, this gradient. उसने कहीं पे शाउट आउट भी दिया भाई आपको, तो कहीं कि मैंने आपसे ही उठाया करके. Cool. Oh, this is nice. This is a nice transition that I have. Cool. I don't generally use dark mode. I use light mode most of the time. So yeah. Oh, Nice button. This is a nice portfolio. आई लव क्राफ्टिंग इंटुइटिव डायनेमिक यूआईज. अब यूआई को स्किल किया तो कुछ हाईलाइट करके प्रोजेक्ट्स डाल सकते थे. सॉल्विंग एप्स का हाईलाइट करके कुछ प्रोजेक्ट्स डाल सकते थे बिकॉज स्टैंड्स आउट. तो अभी मैं भी हवर कर रहा था इस पे. सो यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एक्सप्लोर. कूल. My expertise lies in developing responsive user interfaces for web-based applications, ensuring a secure and seamless user experience. Cool. Snapshots of my work. Don't take me to another page. Take me just here. 3 टाइल डाल दो और अगर मेरा मन है तो मैं शो मोर करके और देख लूंगा. अन्वेषणा. that is actually ये nice. लड़कियों के नाम पे करते हैं सारे लड़के हैं. प्रेजेंस मीट रीड. ओके. उसने एनिमे स्ट्रीमिंग वेबसाइट that lets you watch your favorite anime, sort of like Netflix clone, I'm assuming. देखते हैं. Eternity. ओके. लोडर है. लोडर बड़ा. Oh, this is nice. हम लोग ने सीरियसली लिया भाई एटर्निटी. अब कैसी बात कर रहे हो? एक तो मैं तो नहीं लेता भाई उसको. मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद. If I'm being honest. Nice. The loaders are nice. This looks polished. Nice. चलती भी है क्या? आई गेस उसने कोई एपीआई लगाया होगा मोस्टली. अगर कोई लगाया आ है रही है. तो I definitely love to interview this person and talk about how they are managing bandwidth because video streaming. So yeah, interesting conversation topic. So I'm interested. If I'm interested, I'll interview this person or hire this person. But ये नहीं चल रहा is the problem. तो they can probably fix. दूसरे पे आ जाते हैं. This is a nice blur fade. I like this. Nice. Cool bento. This is also nice. 99 hours coding. Okay. दैट वाज एक्चुअली मैं पहली बार देखा था. मैंने भी चेक किया कि ऐसा कैसे निकलता है. This extension called Walker Time. VS Code में डल जाता है वो कर देता है. But yeah, nice. This is nice bento. Projects देखने में interested था mostly. So yeah. Watcher shipping more soon. रखो ना रखो मैं भी रखता हूँ बट जनरली एडवाइस इज टू डोंट कीप इट. हाँ बट जितने भी है उतने 4 भी बहुत होते हैं. बट प्रेजेंस जियो लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम नॉट इंटरेस्टेड. वेब स्क्रिप्ट टू गेट AKTU यूनिवर्सिटी. ओके. यू फ्रॉम AKTU. वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स इज फ्रॉम AKTU. सो या दैट इज ऑल्सो वन इंटरेस्टिंग पॉइंट. अगर मेरा कोई दोस्त है और मेरे को AKTU दिख गया आई माइट ओपन दिस. वो थोड़ा लक भी होता है. फेयर. Yeah. Cool project. I like the landing in general. I don't आई लाइक द generally ओवरऑल recommend नैपर. this. Yeah, Nabar is also cool. वो Again, जो ऊपर का skill उसने match अपना जो purpose. सिग्नेचर टाइप का बनाया ना, दैट वाज रियली Yeah, नाइस. this is logo is nice, but what they can do is probably cool. So हाँ basically, you लाइक. can centerline this something like that because आपका content centered Navar looks out of the place, but yeah, cool in general. About भी है. Oh, this is a nice hover effect. User on Shakya. 19 is 19. This is fascinating to me always. Whoever is below 20 and building things like this, fascinating. Nice tailwind. Okay. Cool. Thank you so much, brother. Interfont is like gold standard. My favorite, all-time favorite. Yeah. I like this person in general. Every time there is this blur fade effect, I like this. Yeah. This. I like this. My blog is also nice. Simplistic. That is because I have a taste and I like these kinds of websites. So there is some luck involved with this person. And you'll find a lot of people like this also. Yeah. थोड़ा luck से आते हैं, but I like this. I like this website anyway. Cool one. Awesome. Let's move on to the next one. Got college rank. Compare our local lead code performance. Login तो मैं नहीं करूँगा. Guest login दे रखा है तो देख लेंगे. Clerk. Nice. You used clerk. Cool. Third party. पेयर कंपटीशन पेयर क्या करता क्या है. डिस्कवर योर लीड कोड कॉलेज रैंक. कूल. ओके. कंपेयर योर लीड कोड परफॉर्मेंस विद योर पेयर्स. तो मेरे पेयर्स ऑलरेडी है इधर पे या क्या. क्लिक ऑन एनी कॉलेज टू गेट आउट देयर. ओह कूल. सुपर नाइस लाइन. सुपर नाइस डिस्क्रिप्शन. लाइक दिस इज आइडियल. आई लव इट. इट इज वेरी सिंपल. इट इज टू द पॉइंट. कन्वेज द मैसेज. मेरे को पता है क्या तो कर रहा नीचे है. कोई
तो नीचे का कोई कॉलेज पे अगर क्लिक करोगे तो उसकी लीडर बोर्ड निकलती है, वो या जो स्लाइड हो रहा है अभी स्लाइड इतना तेज हो रहा है, इसको धीरे स्लाइड कर भाई. एक्चुअली. Either you have, so this is a call to action, right? You want me to click on any of the colleges, right? Don't have it on a marquee or a carousel. Have it static so that I have time to decide which college I want to click on. Don't have a marquee here. For example, DTO का देखना है तो DTO के कॉलेज का ये है, लीडर बोर्ड चल रहा है लीड कोड का. नाइस नाइस प्रोजेक्ट आइडिया बाय द वे, गुड आइडिया. अभी DTO का कॉलेज में भी कोई रजिस्टर नहीं किया उधर से, फेयर इनफ. सो या इधर भी नहीं पे किया, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मॉक भी डाल सकते हैं शायद. मॉक भी डाल सकते हो, एग्जैक्टली दैट. यहाँ तो आपके पास कुछ डेटा है कुछ कॉलेज का, फॉर एग्जांपल XYZ यूनिवर्सिटी का, तो पहली 3 XYZ डाल दो जिसमें आपके पास डेटा है. मैं इस पे जा रहा हूँ, इस पे डेटा नहीं मिल रहा, इट्स ऑफ पुटिंग. सो यू कैन प्रॉब्ली हैव 3 or 4 कॉलेजेस जिनका डेटा आपके पास है, एंड आई क्लिक एंड आई सी समथिंग. But yeah, good all in all. Design wise, remove these rectangles, holds no value. This is fair enough. This you can probably style better. This nobody is going to read anyway, so if you can beautify it, people might read. This CTA can be better because it doesn't stand out much, merges with the background. So most of your problems will be solved if you remove this background. Yeah, contact us में क्या जाता है, Twitter, nice. हिमांशु गुप्ता cool. All right. So ये था. All right. यार मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा भाई. फट गया. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ Yeah, that's ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बिल्कुल सही कहा. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. दोबारा जाना DM कर देना भाई, कोई चक्कर नहीं, देख लेंगे. बढ़िया था. अगेन अनदर वन. Scheduling made super easy. Okay, scheduling a meeting can be a pain, but we at Cal Marshall you can remove this, make it easy for your clients to schedule meetings with you. Schedule meetings with clients at lightning speed. Simple. You can save up space. Okay, this is a Calendly kind of a thing or a Calcom kind of a thing. हाँ, yes. Is it, or is it just a landing page? I want to try I it out, guess but I it don't- is. I guess. Schedule meetings in minutes. Okay, so I think I'd love to give it a try. मेरे email side कर देना भाई. I'm going to try it. आ रहा है. ओके भाई. इससे करो. Aurora. 50. I like this. We're almost done. We have to now connect your calendar to your account. Connect calendar. Let's see. शायद गूगल पे कनेक्ट करेगा शायद. मोस्टली. So they're using some third party, right? Again. Okay. Now you can edit download bundle your contacts. No. Yeah, cool. Won't do. But yeah, I'm skeptical of connecting this because I don't trust this dot app. I'm very हो सकता skeptical है. with my email addresses, but yeah, generally even my emails I'm very skeptical. But yeah, if you're doing a good job. वो तो यार Landing gear. आजकल ना कभी कभार मेरे पे जो जो आते हैं ऐड के नाम पे डर लगता है भाई. Yeah. All in one mock stock exchange trade without real money. Okay, so this is a sort of Zerodha but with mock data. I guess, but मैं I'm not very like I don't have the Me basic neither. introduction to it, so Me neither. So let us see if they can explain it to us. That is what the goal of a landing page is, right? All in one mock stock exchange trade without real money. A free online platform to trade stocks, learn how to invest, get AI support and much more. Okay. साइन अप तो मैं नहीं कर रहा अभी. ओके चलो कर ही लेते हैं ये वाला भी. Five minutes later. Edited. Okay, this can be better. Or in all, this can be better because this is plain Shadcn that you have used. हाँ. 0.00. Okay, for example, suggest stocks, stock recommendations, get a comprehensive list of stocks where you can deploy your remaining cash. ठीक है ये नहीं पता करना मेरे को. एक बार suggest stocks clear कर दिया, so these are UX principles कि यूजर एक्सपीरियंस क्या है, नॉट नंबर आ रहा है तुम्हारे पहली बात तो, विच इज बैड. सो फिक्स दैट. सजेस्ट स्टॉक्स में आई हैव टू क्लिक अगेन कि भाई सजेस्ट स्टॉक्स.
You can just click on suggest stocks and it analyzes automatically, right? I don't have to click twice. 400. See, क्या दिक्कत है? Bad request. मिसिंग पोर्टफोलियो डेटा रिक्वायरमेंट्स, तो ये बता दो ना मेरे को यहाँ पे. वट एवर योर एरर मैसेजेस, a good coding practice is to show these errors. Missing portfolio, instead of showing error code with this, you can maybe have error.data.message whatever, so that जो भी यहाँ error message है वो pop up हो जाए और I know what to do next. अभी मेरे को, if I'm a normal user, I'm not a engineer or a developer or whatever, मेरे को ये समझ नहीं आया, मेरे को लगेगा वेबसाइट बेकार है. I can see that I'm missing something that I need to do. I need to take a step. तो वो you have to properly show here instead of me digging it down for you. But yeah, अब मेरे को क्या करना है तो मेरे को खुद नहीं पता. पोर्टफोलियो इंडिया Honestly, देख मुझे लेते वही हैं. चीज I इसीलिए मुझे समझ नहीं आया था. मैंने ट्राई किया था एंड आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड, तो मैंने सोचा एंड में डालता हूँ अगर आपको देखना है. बाय कर लेते हैं, चलो NVDA ठीक है. ये तो कहीं से API से आ रहा है. 50 शेयर खरीद लो भाई. भाई ने रिसेंटली लगाया होगा एकदम ही, पहली नाम वही निकली. तो देखो अब I feel once I have this data, I think this might get. वर्क मोस्टली. हाँ वो पैरामीटर मिस कर रही है ना शायद. हाँ वो पोस्ट exactly. रिक्वेस्ट में भेज रहा होगा भाई मोस्टली ना. हाँ. वो होता है ना जिसपे. ये हाँ मेरे देखो को वही. बोलते आ रहा है. These are like beginner mistakes that you shouldn't make, whatever this is. ये तो आप डेटा गलत भेज रहे हो पोस्ट रिक्वेस्ट में. आई फील कि हाँ आपको मोस्टली उसको वही. इधर उधर वो जिप ठीक Yeah. से कर नहीं रहा पोस्ट रिक्वेस्ट में. एनालाइज कर लो NVIDIA के. नाइस अगेन 2 क्लिक्स, 1 क्लिक में कर दो इसको. ओके दिस वर्कड गुड. Pros is this, cons is this. You are using Gemini, which I'm now confident that you will be able to work with AI related APIs, OpenAI, Gemini, Claude वगैरह. Pros cons आप दिखा दे रहे हो, ठीक है, इतना बहुत है. Good, but UI can be improved. Make sure errors are handled properly and stuff like that is in place. सेल करना है, मान लो मेरे को NVIDIA ही करना है अपना, सेल कर दे भाई सारे. क्या नंबर ऑफ शेयर्स? नंबर ने मेंशन किया. 50 के 50 बेच दिए. अब मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊंगा या पोर्टफोलियो इंडिया पे जाऊंगा. अच्छा US पे ही है वो तो. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो दिखना चाहिए ना भाई. जनरली ऐसा होता है ना कि अच्छा हिस्ट्री में शायद. हाँ तो ये हिस्ट्री में सारे दिख रहा था कुछ. कंफ्यूजिंग है टैब्स. ओके बाय किया NVIDIA 50, NVIDIA सेल कर दिया. ठीक है cool. एक चीज कर This सकता is- है इफ आई कैन सजेस्ट इज कि ये जो पूरा एक ही जगह रख दो, सो इट मेक्स इट ये इजियर. रख दो या प्रोफाइल पे अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे को ये सब के साथ आप पूरा डैशबोर्ड दिखा दो ना एक. So you can buy, sell, history, quote, ये सारे eliminate करके just you can have one profile page. बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वाइट स्पेस अराउंड द होल थिंग. सो This is all कि इसके सराउंडिंग में बहुत सारा स्पेस था. placeholders, खाली पड़ा है I've तो. seen. Yeah, good idea by the way. Can be improved tons. तो वो करो, बाकी चले. Light kite, like the land. एंड द लास्ट वन वुड बी भाई, अब जो हमने केले का देखा था. Is nice because it wants me to redo it. You know why? I did this. Okay, this is a simple game, हाँ. right? Okay. Game over. Now, if it gives me like share your Kela score or whatever, and I share it on Twitter, it will quickly pick up. And once it picks up, people will start using it. And then at the bottom, if he has a CT, right? Who am I? Like whatever this guy is, whoever this guy is, हाँ. sorry. And people will be generally curious to know about this person. कि इसने क्या केला बनाया इसने. Score 23. Everyone will be talking about their scores and stuff. This is what happens with every wrapped portfolio or every Tetris game or every game in general. It's about score that people want to compete with, whether it is typing score or whatever score. This 51 is what people want to compete with. So this is Kela. Kele पे करा इसने उसका है. But this is great idea in my opinion. And It has a viral loop. and was मैं हाँ. Cool. And that comes to the end of podcast भाई. हमारा बहुत बढ़िया लगा मुझे, and it was really insightful, and hopefully people enjoyed it and people have quick takeaways to take. कि Yeah. मैं 4 पॉइंट में सम अप कर दूंगा. दैट इज बेसिकली, पहली बात यह है कि नेवर क्विट जॉब और स्कूल विदाउट हैविंग अ प्रॉपर प्लान. दूसरा, Yeah.
दोनों DSA पढ़ो, projects करो, दोनों करो if you want to be like get into both FANG and startups, or if you're goal driven, startup में जाना है, project ज़्यादा करो, FANG में जाना है, DSA ज़्यादा करो. सबके ऊपर make sure you are whatever you're building, build something with business value, and make sure you are talking about them on social platforms because उससे बहुत फर्क पड़ता है. And that will brings us to the end of the podcast. And on that note, thank you so much पाजी, आपने आपकी टाइम लिया है. एक तो ऊपर से इंडिया में रात भी हो गई है, एंड आप इतनी टाइम हमारे साथ बैठ के आपने पूरा पॉडकास्ट शूट किया, एंड आई एम No, रियली थैंकफुल फॉर दैट. थैंक यू सो मच यार. एंड thank you for having me. और बात करेंगे, और आगे जाके विल अगेन कोलैबोरेट एट सम पॉइंट, एंड होपफुली वैसे भाई आपने पाजी अपने हमको ऐसे एस्टर्निटी प्रो तो देने नहीं वाले हैं, तो इसीलिए कभी और एक दे बार दो साथ यार. में कोई भाई. बताओ क्या है आपका ईमेल? पाजी मैंने तो ऐसे ही बोला, पर ये पॉडकास्ट करने के प्रो से भाई. हाँ. Okay. Lifetime is. I mean, this email will lifetime video. You can have it. And I'm releasing 20-30 components probably day after tomorrow once I get back to Jaipur. Oh, that is So it'll awesome. be crazy. Right now you have access to Lifetime Pro. तो मेरे तो Chill. ठीक है भाई, अब अगर किसी को चाहिए तो बताना, मैं शायद Chill. चार्ज करूंगा तुमसे अलग से. But thank you so much Paji for that also, and it is an Most awesome definitely. chat that we had today, and I hope you enjoyed as well. Any suggestions for me? I think you're doing great already. I mean, we met on Instagram, I feel. Yes. And it was crazy. You're confident enough. I felt like talking to you as a person. So really had a great fun, great chat. Enjoyed a lot talking to you, man. It was crazy conversation. I really hope it helps people, streamline their things, because these questions are repeated. I have to answer every day. I hope this clears a lot of fuss around things which are That's there. the whole idea of the Yeah. podcast. And on that note, thank you so much for watching, guys. Hopefully you have enjoyed, and coming up with much more good content. Thank you so much. Bye there.